The next story. From a tricolor to a towel, that is really the journey of Olympian wrestling champion Sushil Kumar. Once draped by the tricolor, the infamy of the Olympian star now draped with a towel as he was dragged out of his hiding place and arrested a few days ago. And don't go anywhere, ladies and gentlemen, because there are even more twists that have made this entire murder case in which this man has been charged as well, which has made the case even murkier. Here's a report on the latest updates in the Sagar Rana murder case in which the man you see on your screen was arrested. 4 others have now also been arrested, all of them associated with the deadly Neeraj Bhavana gang. And this has put the spotlight on the wrestler mafia nexus once again. Star wrestlers fall from grace and how? Since the arrest of Sushil Kumar in the Sagar Dhankar murder case, skeletons have been tumbling out of the closet. 4 associates of Sushil Kumar have been arrested by the Delhi police. They were allegedly with Sushil Kumar at Chhatrasal Stadium when Sagar was murdered. The 4 accused, Bhupender, Mohit, Gulab and Manjeet, are linked to the dreaded Neeraj Bhavana gang, throwing light on the shocking wrestler-gangster nexus. ये रोहिणी जिले के स्पेशल स्टाफ ने ये अभी 4 लोगों को कल रात को गिरफ्तार किया है। ये चारों लोगों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट्स इशूड थे सागर पहलवान मर्डर केस में। इन सब की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स है और ये काला सौदा गैंग से जुड़े हुए हैं। Here's how the young wrestler Sagar Dhankar was murdered according to the police. Sushil Kumar and his associates abducted Sagar Dhankar at gunpoint, allegedly because he failed to pay 2 months of rent. Sushil then allegedly took Sagar to the Chhatrasal Stadium where he was beaten up by Sushil and his aides. Sushil reportedly even fired in the air to scare Sagar, and that's what alerted the cops. The police reached the stadium, but Sushil and many of his aides managed to flee from the spot. Sources have told India Today that Sushil so far has been evasive when asked about his links with gangster Neeraj Bhavana. He did, however, confess to the assault of Sagar, breaking down and saying he never intended to kill the young wrestler. Sushil will be taken by the police to all the locations that he visited after the murder, the places where he hid when he was on the run. With Arvind Ojha in Delhi, Bureau Report, India Today. And joining me are 2 of India's top crime reporters and editors, Shams Tahir Khan reporting from Delhi, Tanseem Haider also reporting from the national capital. Shams, ये जो wrestlers और gangster का जो माफिया है, 4 और लोग आज गिरफ्तार हुए हैं, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पे? शम्स, थोड़ा पर्सपेक्टिव दीजिए कि ये जो नेक्सस था सुशील कुमार का, वो कितना गहरा था? What was the partnership? शिव, एक्चुअली दिल्ली पुलिस को इस वक्त जो एस्टेब्लिश करनी है वो है मोटिव कि आखिर सागर धनखड़ का कत्ल क्यों हुआ है। और इस मोटिव के पीछे जो नई चीज़ें आ रही हैं, एक ये कि एक कहानी आई थी कि एक फ्लैट था जिसका रेंट नहीं दिया, खाली नहीं कर रहा था, इसलिए हुआ। एक रेंट बहुत ज़्यादा होता नहीं है जिसकी वजह से ऐसा कत्ल हो। दिल्ली पुलिस की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन, उसमें 2 चीज़ें बहुत ही सामने आई हैं साफ साफ। वो ये है, सागर धनखड़ का कत्ल किसी भी रेंट या छोटी मोटी लड़ाई की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि ये गैंग वॉर था। और दिल्ली के 2 जो बड़े गैंगस्टर हैं, उनके बीच के गैंग वॉर की वजह से सागर की जान गई। ये 2 गैंगस्टर हैं, एक नीरज भवाना और दूसरा है काला दहेड़ी। काला दहेड़ी यहीं गुड़गांव के पास एक गांव है दहेड़ी, उसका एक क्रिमिनल है, वांटेड है और इस वक्त देश में नहीं। कहते हैं कि या तो वो मलेशिया में है, दुबई में है। इस सागर धनखड़ के साथ एक और लड़के की पिटाई हुई थी जिसका नाम है सोनू मेहाल। सोनू मेहाल दरअसल काला दहेड़ी का नेफ्यू है। अब यहीं से ये सारी चीज़ें शुरू हुई। दरअसल जिस फ्लैट में ये सारी चीज़ें हुई, उस फ्लैट को खाली करने के लिए सुशील ने कहा था, लेकिन उस फ्लैट में मोनू, जो सोनू मेहाल है, वो जाकर रहता था और वो काला दहेड़ी का खास था। काला दहेड़ी के साथ सुशील के पुराने रिश्ते रहे, लेकिन बाद में वो नीरज भवाना के गैंग के साथ भी जुड़ा, उसके साथ भी अच्छे रिश्ते रहे। यहाँ से काला दहेड़ी और सुशील के रिश्ते ख़राब हुए। फिर इस फ्लैट में चूंकि उसने अपने भांजे को भेजा, वहाँ से भी बात और बिगड़ी और इस दौरान में सुशील नीरज भवाना के करीब होता गया और यही चीज़ इन दोनों के बीच में आई। और फिर सबक सिखाने के लिए नीरज भवाना के अपने जो गुंडे थे, उनको लेकर सुशील 4 और 5 मई की रात को पहले मॉडल टाउन जाता है, फिर इन 3 लोगों को किडनैप करता है, फिर छत्रसाल स्टेडियम ले जाता है, जहाँ पिटाई के बाद सागर की मौत हो जाती है। गुरुग्राम पुलिस ने भी लगभग एक ऐसा अंदेशा जताया है दिल्ली पुलिस को कि इस इंसिडेंट के बाद जो दिल्ली में एक गैंग वॉर अब तक रुका हुआ था, हो सकता है
काला दहेड़ी और नीरज भवाना गैंग के बीच गैंग वॉर की एक नई शुरुआत हो जाए। और उसकी वजह है काला दहेड़ी का अपना नेफ्यू, जिसको इस पिटाई में चोट लगी थी और सुशील कुमार ने उसे पीटा था। और कहते ये भी है कि 5 मई को सुशील कुमार ने फोन भी किया था काला दहेड़ी को, माफी भी मांगी, लेकिन काला दहेड़ी ने उसे धमकी दी थी। और अब एक बात ये भी है कि सुशील को शायद दिल्ली पुलिस से उतना डर नहीं है इस हिरासत में, उसे डर ये है कि काला दहेड़ी के लोग कहीं उसे नुकसान न पहुंचे। अच्छा, ओ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो दिस इज अ क्लियर गैंग वॉर इशू दैट इज कमिंग टू लाइट। तंसीम, ये गैंग वॉर का जो इशू जो सामने आया है, 7 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। आपके सोर्सेज के मुताबिक क्या और भी अरेस्ट हो सकते हैं इन दोनों गैंग्स में से? इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को 15 लोगों की तलाश है, क्योंकि सुशील के साथ करीब 13-14 और भी लोग शामिल थे। तो जाहिर है अभी इसमें और गिरफ्तारियां होंगी। दूसरी तरफ स्पेशल सेल ने जो माफिया गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, उसको अपनी कस्टडी रिमांड पे लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने रिमांड पे संपत, तो अब नीरज भवानिया गैंग के साथ जुड़ा हुआ है फिलहाल सुशील कुमार। तो अब दिल्ली पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस गैंग में और कौन कौन शामिल थे जिन्होंने एक्टिव रोल इसमें अदा किया इस पूरे मामले में, और आगे किस तरह की संभावनाएं हैं इन लोगों के बीच में गैंग वॉर की, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है और वो फिलहाल दिल्ली पुलिस की रिमांड पर, उसको 1 महीने की रिमांड पर दिल्ली पुलिस ने लिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अभी इसमें 6-7 लोगों की गिरफ्तारियां और होनी है। तो ये पूरा जो गैंग्स का नेटवर्क है, गैंग्स ऑफ नजफगढ़, ये गैंग्स ऑफ दिल्ली, जो जिसमें बड़े बड़े गैंगस्टर शामिल हैं, इनके नेक्सस के अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है कि आखिर सुशील कुमार से और कौन कौन लोग जुड़े हुए थे। Very, very interesting, and it's getting darker. Shams and Tanseem, thank you very much for joining me on this story. We're going to keep tracking it. Shams and Tanseem lead a team which is digging into every aspect of this very, very murky gangs of Najafgarh, gangs of Delhi saga, with Sushil Kumar, Olympic wrestling champion, right at the center of it all. It's India's biggest crime story, and India Today is right on top of it. We've got some breaking news coming in.